میں نے بیٹی کو ناشتہ دیا تو اس نے ناشتہ کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی حالت آج بھی مجھے عجیب لگ رہی تھی، لیکن میں ضد کر رہی تھی کہ وہ اسکول جائے گی، اس کا ضروری ٹیسٹ ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ کل رات جو بات مجھے پتہ چلی اس نے تو مجھے ہی روح فنا کر دی، لیکن جو بھی تھا میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، اپنی بیٹی سے بھی نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سے اس بات کا اندازہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس کی عمر صرف 18 سال تھی اور وہ اسکول جاتی تھی۔ عمر تو اس کی کالج جانے کی تھی، لیکن بچپن میں وہ بہت بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے میں نے اس کا ایڈمیشن لیٹ سے کروایا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر کی طرف جانے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ روزانہ پیدل اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ اسکول تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ محلے کی چند لڑکیاں کھڑی ہوتی تھیں اور سب ساتھ میں مل کر اسکول جایا کرتی۔ اس طرح انہیں اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی میری بیٹی گھر سے باہر نکلنے کے لیے اٹھی اور ویسے ہی میں نے اپنی سیاہ چادر اٹھائی۔ یہ چادر میری بہت پرانی چادر تھی، جو شاید میری بیٹی کو یاد ہی نہیں، ورنہ وہ پہچان جاتی۔ میں نے چادر اپنے وجود میں لپیٹا اور اپنا چہرہ بھی اس چادر سے ڈھک لیا۔ جوتے بدلے۔ میرے یہ جوتے میں نے کل ہی پڑوسن سے لیے تھے، تاکہ میری بیٹی میرے جوتے بھی نہ پہچان سکے۔ میں بہت تیزی سے گھر کے پیچھے والے دروازے سے نکلی، جو پچھلی گلی کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے اس دروازے سے نکلنے کی اس لیے سوچی کہ میری بیٹی کو پتہ نہ چل سکے کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں، کیونکہ کل رات جو میں نے دیکھا تھا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پتہ کرواؤں گی کہ جو کچھ ہوا ہے وہ کیوں، کیسے اور کب ہوا، اور اس سارے حصے میں میری بیٹی کا کوئی قصور ہے یا نہیں۔ وہ بالکل معصوم ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میری بیٹی قصوروار ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہو۔ دونوں ہی صورتوں میں مجھے اس بات کی تہہ میں جانا ضروری تھا۔ میں تو اس بات پر حیران اور پریشان تھی کہ اتنی بڑی بات میری بیٹی نے مجھ سے چھپائی، اور اس میں میری غلطی تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی سے دوستانہ رویہ نہیں رکھا، ہمیشہ اس پر سختی کی۔ میں زمانے کے تجربے سے گزر چکی تھی۔ میرے پتی نے مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کی تھی، اور میں ایک بیٹی کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں پھرتی تھی۔ بڑی مشکل سے میں کمانے کے قابل ہوئی اور چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی، تب جا کر مجھے دماغی سکون آیا۔ لیکن اس سارے سمے میں اپنی بیٹی سے دور ہوتی چلی گئی، اور ہمارے بیچ یہ دوستانہ رشتہ نہ بن سکا جو ماں بیٹی کا ہوتا ہے۔ شاید اس لیے اس نے مجھ سے ہر بات چھپانا شروع کر دیا، لیکن وہ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی کہ مجھے امید نہیں تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس طرف آ گئی جس طرف سے میری بیٹی اسکول جا رہی تھی۔ میں آج سارا چلتی ہوئی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا میری بیٹی کی چال عجیب سی ہو رہی تھی، اسے چلنے میں بھی مشکل آ رہی تھی، اور میں جانتی تھی کہ کیوں، اس سے چلا نہیں جا رہا۔ ایسی حالت میں تو ایک مضبوط عورت سے بھی چلا نہیں جاتا۔ وہ تو میری 18 سال کی بیٹی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس نے دوسرا راستہ لیا ہوا تھا جو اس کے اسکول جانے کے لیے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میری بیٹی نے اسکول جانے کے لیے الگ راستہ چن لیا ہے، حالانکہ اس کی سہیلیاں تو پرانے راستے سے جا رہی تھیں۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، ان سے الگ ہو کر الگ راستے پر چلتی جا رہی تھی، اور میں اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ورنہ میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اسکول جانے کی بجائے ایک گلی میں مڑ گئی اور آگے چلتی رہی۔ وہ چلتی جا رہی تھی۔ ابھی صبح کا پہر تھا اور موسم تھوڑا ٹھنڈا تھا، ورنہ دوپہر میں تو بہت گرمی ہو جاتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، لیکن مجھے کسی انہونی کا احساس ہو گیا تھا، اور مجھے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ جو بات کل رات ڈاکٹر کی کلینک میں مجھے کھلی تھی، اس کا میری بیٹی کو بخوبی پتہ ہوگا، اور وہ بالکل بھی معصوم نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا اس میں ضرور اس کا قصور ہے، اس کی حرکت ہی بتا رہی تھی۔ اپنی بیٹی کے اتنے بڑے گناہ کا سوچ کر تو میری روح قبض ہونے لگی۔ چلتے چلتے میری تو
सांस फूलने लगी। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी इस हालत में कैसे चल रही है। आखिर क्या मजबूरी है जो इस हालत में भी इतनी दूर तक चलती जा रही है। मेरे होश उड़ गए जब मेरी बेटी ने कब्रिस्तान का रास्ता लिया और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। कब्रिस्तान आबादी से थोड़ा दूर सुनसान जगह पर था। मैं भी उसके पीछे कब्रिस्तान में आ गई और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगी कि वे कब्रिस्तान क्यों आई है। मेरी बेटी थोड़ा और दूर चली गई। मैं भी उसके पीछे जाकर शरीफ के पेड़ के पीछे छुप गई तो देखा कि एक खाली कब्र है और इसके सामने मेरी बेटी आकर खड़ी हो गई। वह काफ़ी सुनसान जगह थी। यहाँ पर किसी का बुरा नहीं होता था और जिस तरफ मेरी बेटी गई थी उस तरफ तो बिल्कुल भी सन्नाटा था। मेरी बेटी खाली कब्र के सामने जाकर क्यों खड़ी हो गई? मैं ये सोच रही थी इसका क्या इरादा था। क्या वे दिमाग से पागल हो गई थी? क्या पिछले 4 महीने से जो इसकी हालत थी इस वजह से वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी और स्कूल की बजाय कब्रिस्तान चली आई। अपनी बेटी को खाली कब्र के सामने खड़ा देखकर मेरे दिमाग में ये सारे सवाल उठने लगे और मुझे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। मैं ज़िंदगी की आजमाइश में इतना गिर गई कि अपनी बेटी की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो गई और वह किस रास्ते पर निकल पड़ी थी। अभी मैं ये सारी बातें सोच रही थी कि अचानक सामने का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान गिर गया, क्योंकि सामने उस खाली कब्र से 2 मुर्दे निकले जिन्होंने कफन पहना हुआ था। क्या वे मुर्दे थे जो कब्र से निकल रहे थे? मैं हैरत से देख रही थी। उन दोनों ने मेरी बेटी के ऊपर एक काला कपड़ा डाला और उसे भी कब्र के अंदर ले गए। ये सब क्या हो रहा था मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं उन्हें देखे जा रही थी। वे सच था या झूठ? मेरी बेटी का कब्रिस्तान आना और कब्र से 2 मुर्दों का निकलना और मेरी बेटी के ऊपर कपड़ा डालकर इसे भी कब्र के अंदर ले जाना। मैं आगे बढ़कर देखने गई तो मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पैर वहीं जम गए। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं कैसे ये मंजर देख सकती थी? लेकिन जो भी था, मैं माँ थी और मुझे हिम्मत करनी थी। अपनी बेटी को इस जहन्नुम से बचाना था। लेकिन जैसे ही मैं कब्र के पास पहुंची, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वैसे ही मिट्टी से खाली कब्र थी। मेरी बेटी और वे 2 मुर्दे कहाँ चले गए, कुछ भी मालूम नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था कि मेरी आंख का धोखा था? आखिर वे तीनों कहाँ गायब हो गए? कब्र तो वैसी की वैसी ही थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। उससे ज़्यादा मेरे अंदर सोचने की कोई हिम्मत बाकी न रही और मैं चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ी। मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। वह शायद मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि बेटी, तुम कब्रिस्तान में मुझे बेहोशी की हालत में मिली हो। मैं वहाँ पर अपनी बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया हुआ था कि अचानक मेरी नज़र तुम पर पड़ गई। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर आया तो पता चला कि कमज़ोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गए। तुम सारा दिन बेहोशी की हालत में थी। मैं तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारे घर वालों को खबर दे सकूं। वे ज़रूर तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल भी नहीं था कि मैं किसी तरह से बात करता। उसने आने के बाद मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया। मैंने उन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि अस्पताल का बिल देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा उन्हें अस्पताल का बिल उन्होंने दे दिया है। मैंने उनसे उनका नंबर मांगा और कहा कि मैं उन्हें उनके पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे वापस नहीं चाहिए। उन्होंने बेलालच मेरी मदद की है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। मैं सदमे से बाहर नहीं निकली और शाम हो चुकी थी और अंधेरा सा छाने लगा। मुझे कब्रिस्तान वाला सारा मंजर याद आने लगा और मैं सोच में थी कि मैं इतनी देर अस्पताल में बेहोश पड़ी रही। मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा? मेरी बेटी इस वक्त कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और मेरी बेटी परेशान थी, घर के लॉन्ज में बैठी हुई थी। मुझे देखकर वो मेरे पास आई और मेरे गले से लग गई और रोने लगी और रोते हुए कह रही थी कि माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रही थी। मेरी बेटी मुझसे लिपट कर रो रही थी, लेकिन मैंने खुद से उसे एक झटके से दूर किया। मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुँच गई थी और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था तुम्हारे साथ वे देख कर मैं बेहोश हो गई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं तो जैसे अपनी बेटी पर फूट पड़ी थी। इतने दिनों
दिनों का वह गुस्सा बाहर निकल रहा था और वह हैरत से मेरी तरफ देख रही थी, क्योंकि इतने दिनों से मेरी बेटी पेट दर्द की शिकायत कर रही थी और जब मैं उसे अस्पताल ले जाने का कहती तो वे मना कर देती कि मैं ठीक हूँ। कल रात जब उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं ज़बरदस्ती उसे अस्पताल लेकर गई। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी के पेट में 4 महीने का बच्चा है। ये सुबह तो मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। मेरी 18 साल की मासूम बेटी, जिसकी अभी शादी की सही उम्र नहीं हुई, वह एक बच्चा अपने पेट में पाल रही थी। मैंने अपनी बेटी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि डॉक्टर ने क्या कहा है। मैं आराम से घर लेकर आई। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी बेटी की हरकत पर पूरी नज़र रखना चाहती थी कि वे क्या करती है, कहाँ जाती है और ये बच्चा किसका है और उसे इस बच्चे के बारे में कोई अंदाज़ा भी है या नहीं, उसके साथ किसी ने धोखा किया है या नहीं। एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं कह रही थी। मैं सोच रही थी कि ज़रूर किसी ने मेरी बेटी को नशे की दवाई देकर ये काम किया है, जिसका मेरी बेटी को पता नहीं है। पता होता तो वे मुझसे जिक्र करती। मैं अपने दिमागी तौर पर अपनी बेटी को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कब्रिस्तान वाले वाक़ये ने मेरा तमाम ख्याल को गलत साबित कर दिया और मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बेटी गलत राह पर चली गई है। और मेरी इस बात पर मेरी बेटी मुझे हैरत से देखने लगी कि मैंने उसका पीछा किया था और मैं सब जानती थी। फिर वह अपना चेहरा छुपा कर फूट फूट कर रोने लगी तो मुझे इस पर तरस आ गया। मैंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाया और उसे सोफे पर बैठाया और आराम से उससे बात की। मैंने कहा कि ये सब क्यों और कैसे हुआ और किसने तुम पर ये जुल्म किया और कब्रिस्तान को क्या हुआ था, मुझे बताओ। मैंने उसे बहुत हिम्मत दिलाई तो उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि मैं स्कूल की लड़कियों की बातों में आकर मैंने कुछ लड़कों से दोस्ती कर ली। फ़ोन मेरे पास था नहीं तो मैं अपनी दोस्त के फ़ोन से लड़कों से बात करती थी। फिर उन्हीं लड़कों में से एक ने मोबाइल मुझे तोहफे में दिया, जिसे मैंने अपने पास छुपा कर रखा। मैं उनसे एक लड़के से बहुत मोहब्बत कर बैठी। इसकी बातों में आ गई। इस लड़के ने मेरी खूबसूरती की इतनी तारीफ़ की कि मैं उसकी बातों में आ गई और इससे मिलने चली गई। मिलने की जगह इस लड़के ने कब्रिस्तान बताई। मैं डर गई थी, लेकिन जब आंखों पर इश्क और मोहब्बत की पट्टी बंधी हो तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता, इसलिए मुझे भी कब्रिस्तान से डर नहीं आया। मेरी बेटी ने बताया कि जब वे कब्रिस्तान गई तो उन सारी कब्र के नीचे उन लोगों ने तय खाना बना रखा था। ये सब इसलिए था कि किसी को उन पर शक ना हो। फिर कब्र के वो इस तरह से बंद करते कि तख्ता होता था और उस तख्ते के ऊपर वे मिट्टी होती थी और जैसे ही वे तख्ता बंद कर देते थे तो कब्र वैसी ही हो जाती थी। पहली बार जब वे लड़के से मिलने गई तो वे लड़का उसे कब्र के अंदर ले गया। वे देखकर हैरान हो गई कि कब्र के अंदर एक और दुनिया आबाद थी। वहाँ पर बाकायदा एक तहखाना बना हुआ था और बिस्तर पर पड़े हुए थे। वहाँ पर गुनाह का काम किया जाता था। मेरी बेटी ने बताया कि वहाँ पर उस लड़के के अलावा भी कुछ लड़के थे जो इस कब्र के अंदर ले गए और उसे जाते ही अपना निशाना बनाया। फिर लड़कों ने अपने मोबाइल में मेरी बेटी की गलत वीडियो बनाई और तब से लेकर आज तक उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। वे रोज़ाना मेरी बेटी से कहते थे कि स्कूल की बजाय मैं उनके पास जाऊं और उन्हें खुश कर दूं, और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो बोले मेरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। उनकी बात से मैं डर गई और रोज़ाना सुबह स्कूल की बजाय कब्रिस्तान चली जाती। फिर वे लड़का मुझे उस कब्र के अंदर ले जाता और मुझे हवस का निशाना बनाते, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं इतने अरसे से उन लड़कों के हाथों ब्लैकमेल होती रही और मुझे अपनी तबीयत का भी अंदाज़ा हो चुका था कि ज़रूर मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। लेकिन जब डॉक्टर के पास वापस आने के बाद भी आपने मुझे कुछ नहीं बताया और नॉर्मल सा अंदाज दिखाया तो मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी ने बताया कि जितने घंटे वे स्कूल में गुजारती थी उतने ही घंटे कब्रिस्तान में उसे तहखाने में मजबूरी में गुजारने पड़ते। वे लड़का जिसकी मोहब्बत भरी बातों में आकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, वे रोज़ाना किसी न किसी लड़के को लेकर आता। हर आने वाला नया लड़का मेरा इस्तेमाल करता और वह लड़का जिससे मैं मोहब्बत करती थी वे पैसे वसूल करता था। उसने इस तहखाने के अंदर एक बहुत बड़ा कारोबार चला रखा है। वे लोग स्कूल की कमसिन बच्चियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस जगह पर उन्हें लेकर आते थे, फिर उनके साथ गलत काम करके उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। कई लड़कियों ने अपनी जान दे दी इज्जत और घर वाले के खौफ से। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि उन लोगों ने कफन क्यों पहने हुए थे तो मेरी बेटी ने बताया कि वे लोग कफन इसलिए पहनते थे कि अगर कोई उन्हें देख ले तो वे उन्हें मुर्दा समझ
समझ कर डर जाए और वहाँ से भाग जाए। देखने वाले को लगे कि मुर्दा अपनी कब्र से बाहर आ गया है। और ये मंजर देखने के बाद अक्सर लोग होश में नहीं रहते, बेहोश हो जाते थे, और जब होश में आते तो उन्हें यही लगता कि उनका वहम था। मेरी बेटी ने कहा जैसे आप बेहोश हो गई थी, उसी तरह ये मंजर देखकर काफ़ी लोग वहाँ से बेहोश हो जाते। मेरी बेटी का सच तो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। वे किस्सा बताकर वे रोने लगी और मैंने उसे गले से लगा लिया। ये सब कुछ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ था। मैंने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा था। अगर वह अच्छी बेटी साबित नहीं हुई थी तो मैं भी अच्छी माँ साबित नहीं हुई थी। मैं सारा का सारा इल्ज़ाम अपनी बेटी को नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरी परवरिश में गलती हो गई थी। मैं अपनी परेशानियों में इस कदर डूब चुकी थी कि मैंने अपनी बेटी की परवरिश में कमी कर दी, और आज ये दिन मुझे मेरी लापरवाही ने दिखा दिया। अचानक मुझे ख्याल आया कि उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मैंने अपनी बेटी के सामने जब पुलिस का नाम लिया तो वे चौंक गई और उसने मुझे मना कर दिया कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वो लोग उसकी वीडियो वायरल कर देंगे। मैंने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और उससे कहा कि इसकी इज्जत तो चली गई है, कितना ही अच्छा हो कि हम दूसरी लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उनके जाल में फंसी हुई हैं और सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो उनके जाल में फंसने वाली होंगी। लेकिन मेरी बेटी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वे बहुत भयानक है। मैंने उसे बहुत समझाया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। उसने मेरी बात मान ली और मैं पुलिस स्टेशन चली गई अपनी बेटी को लेकर, और सारा वाकया पुलिस स्टेशन वालों को बताया। और वे किस्सा सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि वे उनको ज़रूर पकड़ेंगे, बस बेटी को साथ देना होगा। पुलिस वालों ने मेरी हिम्मत और बहादुरी की भी दाद दी, वरना इज्जत के खौफ से लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा अगर आज मैं खामोश हो गई तो उसके बाद जितनी भी लड़कियों की इज्जत का जनाजा निकलेगा उसमें कहीं ना कहीं कसूरवार मैं होंगी, क्योंकि मैं सब जानते हुए चुप रही। पुलिस ने अगले दिन सुबह एक मंसूबा बनाया और सुबह सवेरी मेरी बेटी इसी तरह कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी और पुलिस के सिपाही आम शहर के निवासियों की तरह इधर उधर भटक रहे थे। फिर जैसे ही वे लोग जो मेरी बेटी को अंदर कब्रिस्तान में ले गए तहखाने में, तो पुलिस ने अचानक वहां पर हमला कर दिया और उनके तमाम गिरोह को पकड़ लिया। पुलिस को देखकर वे तमाम लड़के माफिया मांगने लगे, लेकिन माफ़ी तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। पुलिस ने उन सबको जेल में डाल दिया और जो भी लोग उनके साथ मिले हुए थे सबको पकड़ लिया। उनका गिरोह कोई इतना बड़ा नहीं था, उनके हाथ भी ज़्यादा लंबे नहीं थे। ये नया ग्रुप बना था और यहीं पर इसका खात्मा हो गया। तमाम मीडिया वाले भी वहाँ पर पहुँच गए और उन्हीं लड़कों की शक्लें दुनिया के सामने आ गई। मेरी बेटी अभी तक डरी हुई थी। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। इसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। मैं फ़ौरन अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गई। मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि इसकी हालत नाजुक है। डॉक्टर इसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मेरी परेशानी से बहुत बुरी हालत थी। मेरी जान पर बनी हुई थी। जैसी भी थी वे मेरी बेटी थी और मैं इसकी सलामती चाहती थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस बाहर आए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के जो पेट में बच्चा था वह मर चुका है। इस वजह से बेटी को तकलीफ़ हो रही थी। उन्होंने बच्चा वगैरह ऑपरेशन से निकाल दिया है। डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटी अब खतरे से बाहर है। मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। ये मुसीबत भी चली गई। उसका अभी तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था और मैंने पुलिस को कहा कि किसी को कुछ ना बताएं, वरना मोहल्ले में हमारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। पुलिस वालों ने मुझसे वादा किया कि किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। पुलिस ने उन लड़कों को मार मार कर उनके मोबाइल से तमाम वीडियोस बरामद करके डिलीट कर दी। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने मेरी बेटी को छुट्टी दे दी तो मैं उसे घर लेकर आई। मैं बहुत डरी हुई थी कहीं मोहल्ले वालों को इस बात का पता न चल जाए, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा पर्दा रखा, क्योंकि मैंने हिम्मत करके बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई थी, जिसकी वजह से ऊपर वाले ने मेरी बच्ची को और हमारी इज्जत को सरेआम बर्बाद होने से बचा लिया। किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होने दी और मेरी बेटी का बच्चा भी डॉक्टरों ने आराम से निकाल दिया। मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। मैंने इसके खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। मेरे पास मेरी सोने की चूड़ियाँ थी, वे मैंने बेचकर उसकी सेहत पर लगा दिए। कुछ ही अरसे में थोड़े पैसे जमा करके मैंने मोहल्ला छोड़ दिया और दूसरे मोहल्ले में चली गई। ये जो कुछ भी हुआ था मैंने अपनी गलतियों की वजह से हुआ था। मेरी तमाम माँओं से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों से दोस्ताना रवैया रखें, उनकी हर हरकत पर नज़र रखें। अपने बच्चों की तरफ से बेटे हो या बेटी लापरवाही मत बरतें।
میں زندگی کی بہت کڑوی حقیقت سے گزر چکی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی پر دھیان نہیں دیا، اور اس کے بعد جب میرے سامنے مسئلے حل ہو گئے تو میں محلے میں سارا دن آنا جانا کرتی تھی، کبھی کسی کے گھر تو کبھی کسی کے گھر۔ میں نے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، میری بیٹی کس راہ پر چل رہی تھی، میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ میں اسے چھوٹی سمجھتی تھی، مجھے لگا اس کے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن آج کل زمانہ بہت ہی خراب ہو گیا ہے اور چھوٹی بچیوں کو ہی لوگ نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بڑی بچی جو ہوتی ہیں ان میں عقل اور دماغ ہوتا ہے، لیکن چھوٹی لڑکیوں میں عقل نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کا بہکانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا ٹارگٹ اکثر چھوٹی بچی ہی ہوا کرتی ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا میں نے اسے برا سمجھ کر بھلا دیا، لیکن مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ وہ گروہ میری بیٹی اور میری وجہ سے پکڑا گیا، اور جتنی بھی لڑکیاں ان کے جال میں پھنسی ہوئی تھیں سب آزاد ہو گئیں۔ وہ چھوٹا سا گروہ تھا، اگر اس پر قابو نہ پایا جاتا تو ایک بہت بڑا گروہ بن جاتا، ایسے چھوٹے گروہ کے آگے جا کر ایک بہت بڑا مافیا بن جاتا اور پھر انہیں قابو کرنا مشکل ہو جاتا۔ یہی ایک بات سوچ سمجھ کر میں ہر رات سکون کی نیند سوتی ہوں کہ میں نے ہمت کر کے اس گروپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور بہت ساری بچیوں کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی۔